Yeah, see, management will see on this slide. Management of hereditary for mole. There is the management is in दत्ता की बुक में you will get the proper management. और फिर भी यहाँ जो मैं explain किया that is enough to explain for your examination. Management of hereditary for mole. First will provide supportive management. Definitely अगर कोई patient आता है तो will give first emergency treatment or will give first the supportive management. Okay, in the supportive management will provide mother. In supportive management will provide mother. First will infuse the IV for the just energy of the because mother's condition will be very weak, so will provide the IV infuse, will infuse the IV. Next will provide the blood transfusion. Next, if there is any infection, will provide the antibiotic. Blood will be kept in for the blood will be kept for reserved condition for the future. Next, will provide the definitive management. See, in the definitive management, it is important. See, if there is a मैंने हमेशा से बताया था इन द कंडीशन ऑफ अबॉर्शन ऑल्सो फर्स्ट विल प्रोवाइड द सक्शन इवैक्यूएशन इन द इनिशियल अबॉर्शन कंडीशंस because in the initial period there is a having conceptual material. In initial period there is a like semi solid condition. See, suction evacuation में हम क्या करते हैं, we just suck out the materials whatever is inside the uterus. अब आप किस चीज़ को suck out कर सकते हो, जो either it will be in the liquid form or in the semi solid form, तो आप उसी को ही suction evacuate कर सकते हो ना. आप solid material को तो suction नहीं कर सकते हो. इसीलिए in the initial period जब conceptual material होता है तो we suck out that मटीरियल, और जब ये एडवांस हो जाता है तो सक्शन इवैक्यूएशन डजंट वर्क. ओके, तो उस टाइम पे ये वर्क नहीं करता है. तो in this condition first will in this vesicular mole condition we provide first the suction evacuation. It is safe, rapid and effective in almost all cases, done even when the uterus is of 28 weeks. अगर 28 weeks of gestation में भी बोल रहे हैं ये, we can have the suction evacuation because that is, I think this is very delicate मटेरियल्स होते हैं जो अगर बेबी 28 वीक्स का हो भी जाता है तो बहुत डेलिकेट होता है, तो उसको रप्चर करके बेबी को इनसाइड द यूट्रस रप्चर करके उसको सक आउट किया जाता है. मैंने एक बार इमेज दिखाया था आप लोग को. cervix favorable or group A. See, in this there is two conditions. Sorry, one is if the cervix is favorable and one is the cervix is unfavorable. See, अगर आप लोग को इसको जो एरो करके मैं बताती थी ना, मैनेजमेंट ऑफ हेरिडिटी फॉर्म मोल, फर्स्ट विल गिव द सपोर्टिव मैनेजमेंट एंड विल गिव द डेफिनेटिव, तो यू कैन प्लान लाइक दिस ऑल्सो. आप लोग को इस तरह से अगर समझ में आता है, यू कैन प्लान ऑन दिस वे ऑल्सो. ओके, और जैसे आप इसमें डेफिनेटिव मैनेजमेंट शो करें, फर्स्ट यू विल गिव द सक्शन इवैक्यूएशन. इन सेकंड में दो कंडीशंस आएंगे. फर्स्ट कंडीशन विल बी सर्विक्स फेवरेबल or you can give that group A, or if in the condition of cervix unfavorable you can give group B. Mole is in process of expulsion. अब group A जिसमें cervix favorable है उसमें पूरा process expulsion के पूरा process आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब इन दिस कंडीशन जब सर्विक्स अनफेवर, अब व्हाट यू मीन बाय सर्विक्स फेवरेबल अनफेवरेबल. सी, सर्विक्स फेवरेबल मीन्स देयर इज ए कोऑपरेटिव सर्विक्स विच इज कोऑपरेटिव टू एक्सपेल आउट द प्रोडक्ट. कई बार क्या होता है, सर्विक्स का हमको डायलिटेशन नहीं मिल पाता है, तो प्रॉपर डायलिटेशन नहीं मिलेगा तो हम जो फीटस है, जो एक्सपल्शन मटेरियल है, उसको हम आउट कैसे कर पाएंगे. तो यही कंडीशन आता है इन दिस अनफेवरेबल सिचुएशन. यही होता है जिसमें हम बेबी के मटेरियल्स को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि सर्विक्स अनफेवरेबल होता है उस टाइम पे. ठीक है, सी इन द नेक्स्ट विल see this is the image in which I'll teach you. See, this is the speculum, vaginal speculum, जिसको हमने इधर भी यूज़ किया, इधर भी यूज़ किया. I'll teach you in the OBG lab जब भी हम मिलेंगे, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो I'll teach you in the slides की कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं OBG में, वो आप लोग को पता होना चाहिए. एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस ऑल इंस्ट्रूमेंट्स इन दी OBG, इन विच प्लेस, कहाँ पर क्या यूज़ होता है.
अभी तो आपको इतना समझ में आ गया होगा ना कि दिस स्पैकुलम, मैं जब आगे पढ़ाऊंगी तो आपको याद दिलाऊंगी कि याद करो एबॉर्शन के टाइम पे हमने दिस स्पैकुलम हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो दिस इज सिम स्पैकुलम, ये 2 पेयर में होता है, दिस इज सिम स्पैकुलम जिसका यूज़ हम कर रहे हैं। एंड दिस इज सी हियर यू आर एबल टू सी दिस इज कैनुला, इस कैनुला के हेल्प से सक आउट करके हम बाहर निकाल रहे हैं मटेरियल्स को, ठीक है। एंड दिस इज वन स्पैकुलम is placed with this is one inside the uterus. We use the ovum forceps so that we can get out the products of conception. I'll teach you what is the ovum forceps, कैसा होता है, किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, okay. So this was all about the suction evacuation images you are able to see. Next is this is also the patient the nurse personnel is using the see this is ultrasound by the help of this, and this one is of ovum forceps. By the help of ovum forceps we are expelled out the materials. Next is management of in after this all, अगर फिर भी ये suction evacuation is not working, not fruitful, then we'll go to the curettage, okay. Then curettage following vaginal evacuation, vagina evacuate करके we'll have the curettage. Then hysterectomy. Hysterectomy is the last condition. If nothing is happening, nothing is fruitful, then we'll go to hysterectomy. See, you are able to see complete uterus is cleaning out. Next is follow up. Definitely in this condition of heterodyform mole, it is very very important to follow up. First is inquiry about the relevant symptoms. If the mother is coming for the follow up, will inquire about relevant symptoms. कुछ लग रहा है क्या? Abdomino-vaginal examination will do. Investigations करेंगे अगर फिर भी कुछ अगर complaints मिल रही है तो. Contraceptive devices के बारे में will advise the mother. Most important thing is complication. अगर we are just let it be ऐसा करके छोड़ देंगे ना heterodyform mole को, तो what can it create, what complication it can cause. See, first hemorrhage. Continuously mother will get the vaginal bleeding, then hemorrhage हो जाएगा, then after shock हो जाएगा, then after death हो जाएगा. मैं हमेशा से ये गाथा गाते आ रही हूँ. नेक्स्ट इज सेप्सिस. डेफिनेटली इन्फेक्शन मैंने बताया था, तो सेप्सिस बढ़ जाएगा. देयर इज अ चांस टू हैव स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन ऑल ओवर द यूट्रस, एंड इट कैन ट्रांसपोर्ट और इट कैन ट्रांसफर ऑल द इन्फेक्शन इन द बॉडी ऑल्सो. ऑब्वियसली इन्फेक्शन स्प्रेड होता है ना, तो यूट्रस के अलावा आसपास के जो बॉडी ऑर्गन्स है उसमें भी स्प्रेड आउट हो जाएगा. परफोरेटेड यूट्रस ही परफोरेट हो जाएगा. प्री एक्लेम्शिया देयर इज हैविंग चांस ऑफ, जैसे मैंने बताया था कि न्यूरल डिसऑर्डर्स कैन कॉज heterodyform mole can cause a neurological disorders. Then it can definitely it also cause the preeclampsia. I'll teach you preeclampsia, okay, what is preeclampsia. So this was all about the complication. Then now I'll show you the nursing management. As a nurse, how we will अब मैं आप लोग को कोई एग्ज़ाम में अगर ऐसा पूछा जाए कि ये सिम्टम्स ऑफ heterodyform mole. अब सी आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन. A 35-year age of a woman came to the hospital for complaint of vaginal bleeding, and after sonography there is a grapes-like structure seen in the uterus. Then seen in the uterus, full stop. ए करके लिखा है. व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ दिस लेडी एंड व्हाट आर द नर्सिंग मैनेजमेंट यू विल डू फॉर दिस लेडी. अब आप बताइए व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल डेफिनेटली ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर है तो इट इज heterodyform mole. यूज़ योर माइंड एंड राइट प्रॉपरली. सी अब आई टीच यू सेकेंड का आंसर क्या होगा. नर्सिंग मैनेजमेंट. व्हाट ए नर्स responsibility to manage this condition. See, first what you will do, assessment. You will assess the mother कि क्या condition है. vaginal bleeding कि कितनी vaginal bleeding हो रही है. by the 12th week, that is intermittent, bright red, dark brown, slightly or profuse in amount. कितना उसको
लॉस हो रहा है ब्लड, कितना उसको किस टाइप का ब्लड लॉस हो रहा है, स्लाइट ब्लीडिंग हो रही है, डार्क ब्राउन हो रहा है, प्रोफ्यूज, किस टाइप की उसको ब्लीडिंग हो रही है, विल ऑब्जर्व फर्स्ट वाइजाइनल ब्लीडिंग, विल सी दी status of bleeding. Hyperemesis, whether mother is having hyperemesis gravidarum or not, will check out this also. Okay, fundal height in relation to EDC. See, we'll check the fundal height. Why fundal height is important to check? Because we can easily observe. See, fundal height से हम क्या चेक करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, कि इन दिस 12th वीक बेबी का फंडल हाइट इतना होना चाहिए, तो क्या वो हुआ है कि नहीं हुआ है, विल चेक द फंडल हाइट. ओके, नेक्स्ट विल चेक द HCG लेवल, मदर्स का HCG लेवल. वाई वी आर चेकिंग HCG लेवल? बिकॉज HCG लेवल से हमको पता चल जाएगा द स्टेटस ऑफ मदर, कि अगर उसको हाइपरमेसिस हो रहा है या फिर उसको साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली HCG इंक्रीज है, इसीलिए मिल रहा है. तो HCG का लेवल चेक करें इन एनी ऑफ द कंडीशन, एनी ऑफ द अबॉर्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू check the level of HCG. Next is snowstorm pattern in ultrasonography. Will provide the snowstorm pattern with sonography. Try to give the mother no fetal heart tone or auscultation. अगर मदर को कोई फीटल हार्ट साउंड्स और कुछ ऑस्कल्टेट नहीं हो रहा है, सिम्टम ऑफ PIH अगर दिख रहा है, और फियर ऑफ प्रेगनेंसी एंड एप्रीहेंशंस दिख रहा है, तो दीज ऑल आर दी असेसमेंट यू विल फील इन दी मदर. ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी मदर के कंडीशंस में. ओके, देन एज ए नर्स व्हाट यू विल डायग्नोज, ये सब आपने असेस कर लिया, ये सब दिख गया आप लोग को, आपने चेक करने से आपको ये सब पता चल गया, ये सब ये कंडीशन है मदर की. देन व्हाट यू विल डू एज ए नर्स, व्हाट यू विल डायग्नोज एज ए नर्स. सी, फर्स्ट विल डायग्नोज मदर फीटस इन दी कंडीशन ऑफ रिस्क और इंजुरी. ठीक है, अब अगर देर इज़ ए पार्शियल, अगर बेबी, क्योंकि मैंने एक और टाइप्स बताया जिसमें बेबी फीटस फॉर्म होता है बट प्लेसेंटा ग्रो नहीं हो पाता है, तो इन दिस कंडीशन विल डायग्नोज दैट फीटस इज इन इंज्योर्ड कंडीशन बिकॉज देर इज़ नो ऑस्कल्टेशन. हमको ऑस्कल्टेशन, हार्ट साउंड नहीं मिला, फीटल टोन नहीं मिला, इट मीन्स दैट फीटस इज इन dangerous condition, in injury condition. Risk for infection, definitely there is a risk of infection. Ineffective airway clearance, it may be happen. Risk for aspiration, risk for anxiety, anticipatory grieving, क्योंकि mother is like she was thinking कि मुझे अब I get my baby, I am pregnant now. She was like very happy. अब उसको पता चलेगा कि she is not pregnant, उसके साथ ये condition है, तो she will be in the grievances condition. Okay, altered family process, definitely it would be altered, सब family disturb हो जाएगी. Risk for altered parenting, mother और father दोनों की condition altered हो जाएगी. Health seeking behavior, mother will all the times try to seek the attention of everyone. Okay, so this was about the nursing diagnosis. What as a nurse you will diagnose is these are the diagnosis. Now as a nurse, what you will plan to manage these conditions. First, provide information regarding the treatment plan. You will provide mother कि how you can treat this condition. Next, promote maternal physical well-being. अब now you will first your important focus is to promote the maternal health condition, क्योंकि हम पहले से जान रहे हैं कि बेबी इज़ नॉट एट ऑल इन गुड कंडीशन, और बेबी आगे जाके सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा. वी नो एवरीथिंग, बट एज ए नर्स व्हाट इज़ योर ड्यूटी टू प्रमोट मैटरनल हेल्थ को हमें प्रमोट करना है. ओके, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर काउंसलिंग एंड सपोर्ट. अब मदर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मदर नीड्स काउंसलिंग एंड सपोर्ट, कि उसको ठीक है अभी हेरिडिटरी फॉर्मोल हुआ है, बट शी कैन हैव अनदर प्रेगनेंसी ऑल्सो और विथ वेरी नॉर्मल कंडीशन. आपको काउंसिल करना है मदर को, ठीक है, उसको सपोर्ट करना है, नहीं तो वो डिप्रेशन में आके और कुछ गलती कर बैठती है ऐसे टाइम पे वुमन. इसलिए इट शुड बी इन योर प्लानिंग टू काउंसिल ए वो मदर इन ए प्रॉपर वे. प्रोवाइड टीचिंग रिलेटेड टू दिस सेल्फ केयर. अब सेल्फ केयर से रिलेटेड मदर को टीचिंग करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है. वाई वी आर फोकसिंग ऑन सेल्फ केयर? बिकॉज
सी मदर का आपने सक्शन इवैक्यूएट किया लाइक ए अबॉर्शन शी हैव, तो प्रॉपर क्लीनिंग, प्रॉपर हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो यू विल else the mother can have the infection, chance of infection also. इसलिए it is important to give the proper health education to women. Okay. Next is implementation. Whatever you have planned, now it's time to implement, execute your work, coordinate diagnostic test. Definitely, what are the diagnoses? You have to test all the investigations, and you have to instruct mother to go for the investigations. Okay. Prepare woman for uterine evacuation. I told earlier कि मदर को आपको रेडी करना है कि यूट्राइन इवैक्यूएशन के लिए, सो दैट वी कैन क्लीन आउट ऑल दी कंप्लीट एंटायर यूट्रस, ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो. बिकॉज सी दैट ऑल आर द ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर ना, मतलब गुच्छे गुच्छे में वो पूरा स्प्रेड आउट हो चुका है यूट्रस में. एंटायर यूट्रस इज इन इन्फेक्टिव, मतलब बहुत इन्फेक्शन है इनसाइड द यूट्रस. देयर इज अ नीड टू इवैक्यूएट द यूट्रस एंड क्लीन आउट कम्प्लीटली. ओके. ऑब्जर्व फॉर पोस्ट प्रोसीजर हैमरेज एंड इन्फेक्शन. आगे पोस्ट प्रोसीजर हैमरेज मतलब आगे और कोई देयर इज़ अ चांस ऑफ हैमरेज और इन्फेक्शंस अगर होते हैं तो यू विल सी, क्योंकि प्रोसीजर के बाद देयर इज़ अ चांस टू हैव दी इन्फेक्शन. ओके. इंस्ट्रक्ट एंड फैसिलिटेट फॉलो अप केयर बिफोर. दिस इज़ योर वन मोर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आपको वुमन को इंस्ट्रक्ट करना है फॉर द फॉलो अप. बिकॉज मैंने अभी बताया था आपको पोस्ट प्रोसीजर देयर इज़ अ चांस टू हैव इन्फेक्शन, इसलिए हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो विदाउट फॉलो अप यू कैंट ऑब्जर्व. ओके. मॉनिटर HCG लेवल फॉर 2 years. 2 साल तक आपको HCG लेवल को मॉनिटर करना है. इंस्ट्रक्ट वाई HCG लेवल मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज इन दिस कंडीशन HCG लेवल कैन एनी टाइम इन दिस कंडीशन can high can low. इसलिए there is a if there is in the non-pregnancy state and HCG is secreting, then what will happen? This can cause a various signs and symptoms of pregnancy, but there will be no pregnancy. Okay. There will be no fetus. Instruct HCG hormone is very much important during the pregnancy, but not at all important in the non-pregnant state. Okay. इंस्ट्रक्ट रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी 2 years. आपको इंस्ट्रक्ट करना है कि मदर को 2 साल तक कोई प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए नहीं बोलना है. इसलिए मदर को आप बर्थ कंट्रोल के मेजर्स उनको बताओ, क्या क्या बर्थ कंट्रोल के मेजर्स आप यूज़ करते हो टिल 2 years. ओके. 2 साल तक प्रिवेंट करवाना है. प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग दी फैमिलीज ग्रीविंग पीरियड. सपोर्ट आपको यू एज ए नर्स यू ओनली कैन support psychological support to her family and her parent, her husband. तो आप ही हैं जो आपकी बात मतलब एज ए नर्स, क्योंकि आई एम ऑल्सो द एग्जाम्पल यार. जब आई वेंट टू दी हॉस्पिटल इन ड्यूरिंग माई डिलीवरी टाइम, ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी टाइम, जब कोई सिस्टर डॉक्टर कुछ हमें जब काउंसलिंग करती ना, इट इफ़ेक्ट्स यार. मैंने फील किया मेरे घर पे अगर मुझे कितना भी काउंसलिंग हो जाए, मेरे रिलेटिव्स कितना भी काउंसलिंग करें, बट दैट इज़ नॉट एट ऑल इफ़ेक्टिव. अगर एक नर्स मुझे कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे देती है तो दैट वर्क्स. इसलिए मैं बता रही हूँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट बाय ए नर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन एवरी डिजीज कंडीशन टू ए पेशेंट. नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन. what you will evaluate, ensure that the woman has rapidly decreasing HCG titers. आपको ये ऑब्जर्व करना है कि HCG डिक्रीज हो रहा है कि नहीं. रिकवर्स फिजिकली आफ्टर इवैक्यूएशन ऑफ द मोलर प्रेगनेंसी. रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा फिजिकली, यू विल नीड टू ऑब्जर्व. वर्बलाइज पॉजिटिव सेल्फ इमेज. आप मदर के साथ बात करो पॉजिटिव सेल्फ इमेज के लिए. उसके अंदर ऐसा नेगेटिव नहीं आना चाहिए कि हाँ मैंने अबॉर्ट कर दिया, मेरे पेट के अंदर ऐसा बच्चा हुआ था. नो, आप क्लियर करो, ये पॉजिटिव सेल्फ इमेज लाने की कोशिश करो कि वो भी प्रेग्नेंट हो सकती है, आगे जाके अच्छी माँ बनेगी, मतलब अच्छा प्रेगनेंसी हो सकता है उसका. ओके. अवॉइड कंसेप्शन ड्यूरिंग द फॉलो अप पीरियड. किसी प्रकार का कंसीव नहीं होना है ड्यूरिंग दी फॉलो अप पीरियड. वॉइसेस अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग नीड टू अवॉइड प्रेगनेंसी एज पर द फिजिशियंस रिकमेंडेशंस. ट्राई टू मदर को इंस्ट्रक्ट करना है कि अवॉइड प्रेगनेंसी जब तक
मैंने बताया 2 इयर्स, जब तक अगर डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करता है तब तक नीड टू अवॉइड दी प्रेगनेंसी। ओके, दैट ये आपको टीच करना है एक वुमेन को। सो दैट्स ऑल अबाउट दी हेरिडिटरी फॉर्म मोल, इट्स मैनेजमेंट, इट्स मेडिकल मैनेजमेंट, it's nursing management, everything done about the hereditary form mole. If any doubt, any inquiry, you can ask me anytime. Thank you so much.